بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرو۔ سب سے پہلے بات کریں گے کسان کو درپیش مشکلات کے حوالے سے۔ پریشان کسان کی زندگی کب بنے گی آسان؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا کسانوں کے حق میں ٹریکٹر ٹرالی احتجاج۔ ملتان بہاولپور بائی پاس سے کسانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ رحیم یار خان سے کسانوں کا قافلہ بہاولپور کے لیے روانہ ہو چکا ہے۔ ضلعی صدر سردار حبیب الرحمان خان گوپانگ سمیت دیگر نے بھی شرکت کی ہے۔ ڈویژنل جنرل سیکرٹری لیا ملک ریاض سامٹیا کی قیادت میں قافلہ روانہ ہو چکا ہے۔ شرکا کی حکومت مخالف نعرے بازی بھی جاری ہے۔ اپڈیٹ کریں گے آپ کو ہم خبر سے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کسانوں کے حق میں ٹریکٹر ٹرالی احتجاج آج ہو رہا ہے۔ ملتان بہاولپور بائی پاس سے کسانوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ رحیم یار خان سے کسانوں کا قافلہ بہاولپور کے لیے روانہ ہو چکا ہے۔ ضلعی صدر سردار حبیب الرحمان خان گوپانگ سمیت دیگر نے شرکت کی ہے، جبکہ ڈویژنل جنرل سیکرٹری لیا ملک ریاض سامٹیا کی قیادت میں بھی قافلہ رواں دوا ہے۔ شرکا کی حکومت مخالف نعرے بازی بھی جاری ہے۔ اپڈیٹ کرتے چلیں آپ کو، پریشان کسان کی زندگی کب بنے گی آسان؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا کسانوں کے حق میں ٹریکٹر ٹرالی احتجاج۔ ملتان بہاولپور بائی پاس پر کسانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ رحیم یار خان سے کسانوں کا قافلہ بہاولپور کے لیے روانہ ہو چکا ہے۔ کسانوں کی بڑی تعداد اس احتجاج میں شریک ہے اور حکومت سے بارہا التجا کرتے رہے کاشتکار کہ ان کے مسائل حل کیے جائیں، کھاد فراہم کی جائے، ان کو نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ لیکن آج پیپلز پارٹی کی قیادت میں یہ ٹریکٹر ٹرالی احتجاج کیا جا رہا ہے، جس میں کسانوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ ڈویژنل جنرل سیکرٹری لیا ملک ریاض سامٹیا کی قیادت میں بھی قافلہ روانہ ہو چکا ہے، جبکہ شرکا کی جانب سے حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے۔ ادھر ملتان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے حکومت کے خلاف کسان مارچ۔ بہاولپور بائی پاس پر جیال اور کسانوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ مزید بات کریں گے میجوان کے امجد ملک نے۔ امجد، کتنی بڑی تعداد میں کسان یہاں پر موجود ہے اور کیا کہتے ہیں ہم کسان اس پر؟ بالکل، آج کسانوں کے حوالے سے آج کسان مارچ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے نکالا جا رہا ہے۔ بڑی تعداد میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے ہیں، عہدیداران ہیں، کارکنان ہیں، وہ اس وقت بہاولپور بائی پاس چوک کے لیے پہنچنے کے لیے تیار ہیں۔ اس وقت اگر میں بات کرتا ہوں سیدہ والے بائی پاس پہ، اور اس کے علاوہ یہاں پہ رضوان ہاس کے ڈیرے سے بھی ایک بڑا قافلہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا یہاں سے روانہ ہونے کے لیے تیار ہے۔ بڑی تعداد میں یہاں پہ جو کسان ہیں وہ بھی شریک ہیں، ٹریکٹر ٹرالیوں کے ہمراہ یہ پہنچیں گے بہاولپور بائی پاس چوک پہ، جہاں پہ سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی اور دیگر جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اراکین اسمبلی ہیں، عہدیداران ہیں، وہاں پہ شرکت کریں گے۔ سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں رضوان ہاس اور دیگر جو کسان بھی انہی کی زبانی جانیں گے ان کو کتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سر بتائیے گا کیا کہیں گے کھادوں کے حوالے سے، کسان کے حوالے سے آج آپ کسان مارچ نکالنے جا رہے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ۔ ہمارے جیسے کہ بلاول بھٹو ہمارے قائد چیئرمین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کسانوں کے لیے نکلیں۔ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو ڈی اے پی شارٹ ہے، باقی کھادیں شارٹ ہیں۔ یہ ابھی تک لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، عام بندوں کو، کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا۔ اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ اب 4 مہینے بعد ہماری فصل گندم کی ہم نے کاٹنی ہے۔ اگر ہمیں کھاد نہیں ملیں گے تو اس کے نتیجے میں گندم کا جو ہے وہ بحران کا بہت زیادہ خطرہ ہے، جس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ ہمیں گندم ایکسپورٹ کرنی پڑے گی مہنگے داموں۔ تو یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں۔ کھاد کو ساری جو ہماری انفارمیشن ہے وہ ساری کھاد جا رہی ہے، اس وقت افغانستان جا رہی ہے، تو اس کو بند کیا جائے اور کسانوں کو اس وقت جو دیکھیں یہاں پہ کارکنان جو ہیں بہت زیادہ جوش و جذبے میں ہیں، اور اس وقت انہوں نے باقاعدہ طور پہ بینرز اٹھائے ہوئے ہیں جس میں ٹریکٹر ٹرالی مارچ کے حوالے سے باقاعدہ طور پہ جو کارکنان ہیں وہ سیدہ والے بائی پاس سے اس وقت روانہ ہو رہے ہیں بہاولپور بائی پاس چوک کی طرف۔ اور بھی میرے ساتھ لوگ موجود ہیں، کسان یہاں پہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ آپ بتائیے گا کتنی پریشانی ہو رہی ہے؟ کھاد دستیاب نہیں ہے، کئی ماہ ہو گئے ہیں۔ جی دیکھیں جی، اس وقت آپ کے سامنے صورتحال بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے، کھادیں بالکل نہیں مل رہی۔ تو جیسے ابھی رضوان ہاس نے کہا ہے کہ گندم کا بحران پیدا ہونے والا ہے، ہمیں امپورٹ کرنی پڑے گی گندم۔ اور مجھے یہ بتائیں، پہلے اتنی مہنگائی ہے اور غریب آٹا لینے کے لیے مجبور ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اس کے بعد جو صورتحال ہوگی آٹا مزید مہنگا ہوگا، باقی چیزیں بھی اس طرح مہنگی ہوں گی۔ پیٹرول پہلے حکومت نے مہنگا کر دیا ہے، بیچارہ کسان پس کے رہ گیا ہے۔ آپ کے سامنے کہ کسان ریڑھ کی ہڈی ہے کسی بھی ملک کی معیشت میں، تو اس کو باہر رکھنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ جو نا ہم یہ کھادیں بھی سستی کریں اور یہ آسانی سے ملنی چاہیے، کہ جس کے پاس پڑی ہے وہ ڈبل پیسے مانگتا ہے، تو
इस इस्तेसाल को, किसान के इस्तेसाल को बंद किया जाए। है यहाँ पे खवातीन भी शरीक हैं इस पूरे कारवां के अंदर। आप मुझे बताएं क्या कहना चाहेंगी, कितनी तादाद में खवातीन आगे भी मौजूद होंगी जब इस कारवां के अंदर? खवातीन तो हमारी साथ देने को तैयार है पड़ी, और ये किसान मार्च इसलिए गरीबों के लिए किया जा रहा है, और वो बेचारे बहुत परेशान है, हर बंदा परेशान किसान मार्च के लिए, इसीलिए रिजवान भाई ने निकाली है रैली। हम भी उनके साथ हैं अपने भाइयों के। ठीक है, और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, कितनी परेशानी हो रही है जो खाद इस वक्त? मैं सिर्फ मुख्तसर बयान देना चाहता हूँ कि किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। किसान को खुशहाल करें, पाकिस्तान को खुशहाल करें। मेरा हुकूमत से यही मुतालबा है कि हमारे किसानों को खुशहाल करें। बिल्कुल ऐसे ही है, ये सिर्फ यहाँ के मनाजिर नहीं है बल्कि मुल्तान के हर जो बड़े मकामात है वहाँ से यही मनाजिर हमें देखने को नजर आ रहे हैं कि मुख्तलिफ मकामात से, नागशाह चौक से, सैदावाला बाईपास, अड्डापन बोसन, कादिपुर राज से और दीगर इलाकों से जो काफिले हैं वो रवाना होना शुरू हो चुके हैं। भावलपुर बाईपास चौक पे एक बड़ा जो एहतजाज है, किसान मार्च वहाँ पे किया जाएगा। कारकुन ठीक है, हमसे ये भी बताएगा कि भावलपुर बाईपास चौक पर जो एहतजाज होगा वो आज तक ही मुहित रहेगा या कुछ धरने का भी प्लान है? इनका अगला स्टॉप क्या होगा, क्या कहते हैं ये लोग? देखिए, बिल्कुल अभी तक जो प्लान बनाया गया है दिन 1 बजे तक भावलपुर बाईपास चौक पे पहुंचना है। उसके बाद साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी वहां पे खिताब भी करेंगे, दीगर अहदेदारान भी खिताब करेंगे। उसके बाद का ही लाए अमल जो है वो सामने आएगा। यूसुफ रज़ा गिलानी जो ऐलान करेंगे कि हमने आगे किस तरह मार्च करना है। इस वक्त भी अगर बात करते हैं तो मुल्तान शहर के जो मेन शाहराएं हैं, जो मेन चौक है, इस वक्त वहां पे सिक्योरिटी की भारी नफरी तैनात की गई है। यही मुमकिन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मार्च है वो शहर की तरफ आ सकता है, मुख्तलिफ मकामात की तरफ जा सकता है। तो इसलिए सिक्योरिटी की जो है भारी नफरी तैनात की गई है ताकि किसी किस्म का तसादुम ना हो, शहरियों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस वक्त जो है हजारों की तादाद में जो किसान हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले हैं, वो अपने घरों से निकलना शुरू हो गए हैं, भावलपुर बाईपास चौक पे पहुंचेंगे। उसके बाद ही का जो लाहे अमल है वो सामने आएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे का कौन सा ऐलान करने जा रही है और वहां पे आया कि धरना दिया जाता है फिर या आगे की तरफ ये जो कारवां है मूव करता है। इंतजामात बेहतरीन भी किए गए हैं। जो किसान हैं वो अपने घरों से इस वक्त निकल चुके हैं। ट्रैक्टर ट्राली के हमरा बड़ी तादाद में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले हैं वो भी इनके हमरा मौजूद है। दूसरी जानिब अगर बात करते हैं साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, वो भी इस मार्च के अंदर शरीक होंगे और उसके अलावा रुकन सूबाई असम्बली अली हैदर गिलानी, साबिक MNAs अब्दुल कादिर गिलानी, अली मूसा गिलानी और दीगर को भी मदऊ किया गया है कि अरकान असम्बली इसके अंदर शरीक होंगे और आज का जो किसान मार्च है इसको भरपूर बनाएंगे। ना सिर्फ ये मुल्तान बल्कि जनूबी पंजाब भर के अंदर अगर बात करते हैं, डेरा गाजी खान, भावलपुर, मियांवाली, खानेवाल, हर तरफ जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो किसान हैं वो आज अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और इस किसान मार्च के अंदर शरीक होंगे। जो जियाले हैं इस वक्त आप देख भी सकते हैं, बड़े बड़े जो है पुरजोश नजर आ रहे हैं और इस वक्त जो पीपल्स पार्टी के तरानों के ऊपर यहाँ पे जोश खरोश हमें नजर आ रहा है और ये जो काफिले हैं रवा दवा हैं। आप भावलपुर बाईपास चौक पे वहां पे पहुंचेंगे और गिलानी साहब को खिताब भी करेंगे और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि वहां पे एक बड़ा जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना पावर शो दिखाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो इस वक्त कारकुनान है हमें बहुत ज्यादा चार्ज नजर आ रहे हैं। ये उम्मीद की जा रही है कि जैसे 1 घंटे तक ये काफिला जो है वहां पे भावलपुर बाईपास चौक पे पहुंचेगा, एक बड़ा काफिला वहां पे नजर आएगा। अमजद ये भी बताइएगा कि जियाले भी मौजूद हैं, सियासी क़यादत भी इस जो एहतजाज है उसमें शिरकत करेगी, तो जो किसान हैं उनसे राब्ता किया है इंतजामिया की जानिब से कि आप बाहर ना आए, क्योंकि जैसे आपने बताया जनूबी पंजाब के तमाम शहरों से किसान बाहर आएंगे तो ये तो केओस होगा, लोग बाहर जमा होंगे तो मुश्किलात होंगी इंतजामिया के लिए भी, तो उनकी जानिब से कोई राब्ता किया गया कि आप बाहर ना आए, आपको खाद फराम की जाएगी या कुछ इस तरह की बात? ये देखिए बिल्कुल ऐसी है कि इंतजाम जो है इंतजामिया की जानिब से कल से ही शुरू कर दिए गए थे कि जैसे कल गिलानी हाउस में अली हैदर गिलानी और अली मूसा गिलानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसके बाद ही इंतजामिया जो है वो भी बहुत ज्यादा हमें अलर्ट नजर आई और इसीलिए जो कि पंजाब पुलिस को मुल्तान के अहम चौकों के ऊपर तैनात कर दिया गया है। मुख्तलिफ जो चौक है उनके ऊपर पुलिस की भारी नफरी तैनात है। यही प्लान किया गया है कि अगर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान या किसान जो है किसान जो है सरापा एहतजाज है, आज बड़ा जलसा होगा जिसमें वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी भी खिताब करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसानों के हक में आज सड़कों पर निकल आई है और किसानों की बड़ी तादाद भी ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ अपने हक में एहतजाज कर रही है। बहुत शुक्रिया अमजद, आपने अपडेट किया।
زرعی خطے کی دکھ بھری داستان، کھاد کے لیے رول گیا جنوبی پنجاب کا کسان، ملتان کے کسان یوریا کھاد کے حصول کے لیے دربدر، حکومت کے کسان کارڈ بھی کسانوں کے لیے بے سود ثابت ہوئے، گھنٹوں قطار کھڑے ہونے پر صرف ایک بوری ملتی ہے، کسان کھاد نہ ملنے پر شکوہ سنانے دیتے ہیں۔ اپڈیٹ کریں گے آپ کو، زرعی خطے کی دکھ بھری داستان ہے جو کہ روہی کی اسکرین پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں۔ کھاد کے لیے جنوبی پنجاب کا کسان اب رول چکا ہے، ملتان کے کسان یوریا کھاد کے حصول کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے۔ مزید بات کریں گے علی ریاض سے۔ علی بتائے گا کیا کہتے ہیں کسان، کتنے پریشانی ہے؟ جی بالکل، یوریا کھاد کا جو بحران ہے وہ قابو میں نہیں آ پا رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے جو کسان کارڈ چھوٹے کاشتکاروں کے لیے فائدے کے دیا گیا تھا وہ بھی بالکل ناکام ہو چکے ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں ملتان کے علاقے سے کے قریب میں، اور یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ جو کسان کارڈ ہیں وہ بھی کاشتکاروں کے منہ پر مار دیں گے۔ بات کریں کاشتکاروں سے کہ کیا کہنا چاہیں، آپ کے پاس تو کسان کارڈ بھی ہے، کیا آپ کو کھاد نہیں دے رہے؟ ہمیں بھی نہیں دے رہے جی، مسئلہ ہے صبح کے پریشان ہو رہے ہیں، کوئی نہیں، کسی کو دیتے ہیں کسی کو نہیں دیتے، ویسے ہی بلائے وہ دیکھو سارے نے علیحدہ علیحدہ وہ اپنی مرضی سے دے رہے ہیں، کسی کو نہیں دے رہے، سمجھ نہیں آ رہی بھی مطلب کیا کریں گے جی کسان کارڈ ہونے کے باوجود بھی ان کو جو ہے یوریا کھاد میں مزید بات کریں گے۔ آپ کے یہ بتائیں، آپ کے پاس تو کسان کارڈ بھی ہے، کیا کہتے ہیں آپ کو یہ؟ صبح کے 7 بجے سے آئے ہیں، سب کسان کارڈ بڑے بڑے دعوے کیتے ہیں، آخر میں کسان کارڈ 5.8 بورے ڈے سوں 20 کے ساری کڑک ایک بوری ملی ہے، پہلے وال ملی کوئی نہیں، کیا نہیں کرو سر، اگر کھاد دے سوں تو فصل لاسی، کھاد نہ دے سوں فصل نہ لاسی، 50 70 80 ہزار مستاجری ایکڑ دی، کی میں مستاجری کا خرچہ پورا کروں؟ یہ بتائیں کسان کارڈ اب تک آپ کسی کام آیا ہے یہ؟ ایک دفعہ آیا ہے، ایک بوری تھی نے، کوئی تو اوپر نہیں تھی۔ جی کسان کارڈ ہونے کے باوجود بھی جو چھوٹے کاشتکاروں خاصے پریشان ہیں، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ صرف اور صرف ایک بوری دی گئی ہے اس کسان کارڈ ہونے کے باوجود بھی۔ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ حکومت کی جانب سے سبسڈی دی جا رہی ہے، اس پر بھی جو ہے اقدامات نہیں ہو رہے، کاشتکار جو خاصے پریشان کسان ہیں۔ کارڈ کا بھی کوئی فائدہ نہیں کہتے ہیں۔ بہت شکریہ علی، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے زیر اہتمام ڈی جی خان میں کسان مارچ، لیا سے ڈویژنل جنرل سیکرٹری ملک ریاض سامٹیہ کی قیادت میں قافلہ ڈیرہ غازی خان روانہ ہو چکا ہے۔ مزید بات کریں گے زاہد سفراز سے۔ زاہد بتائے گا اس قافلے کی صورتحال کیا ہے اس وقت؟ بالکل جی، پاکستان پیپلز پارٹی ڈی جی خان کے زیر اہتمام آج جو ہے ڈویژنل کسان مارچ کیا جا رہا ہے، جس کے اندر ٹریکٹر ٹرالی لے کر کاشتکار جو سڑکوں پر آئیں گے۔ اس والے سے اگر بات کی تو لیا سے ایک بڑا قافلہ جو ہے وہ ڈپٹی جنرل سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب ملک محمد رمضان بھلر، جنرل سیکرٹری ڈویژنل جنرل سیکرٹری ملک ریاض سامٹے کی قیادت کے اندر ایک بڑا قافلہ جو ہے ڈی جی خان میں مارچ کے حوالے سے شمولیت کرنے کے حوالے سے لیا سے روانہ ہو رہا ہے۔ ملک رمضان بھلر صاحب سے بات کریں، صاحب کیا پیغام دیں گے، مارچ کا مقصد کیا ہے سر؟ آج ہمارا مقصد پاکستان کی معیشت کو بچانا ہے، پسے ہوئے کسان کو بچانا ہے۔ جو کسان اس ٹائم پاکستان پیپل پارٹی کی طرف دیکھ رہا ہے، پاکستان پیپل پارٹی ہمیشہ کسان کے ساتھ، غریب کے ساتھ اور مسکین کے ساتھ رہی ہے۔ آج ہماری یکجہتی کسان کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ ہے۔ پاکستان کی معیشت کو بچانے کے لیے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کے حکم پہ ہم آج نکلے ہیں۔ انشاءاللہ ڈیرہ غازی خان ہم پہنچیں گے، راستے میں ہم بہت سارے قافلے جوائن کریں گے، جمن شاہ، کوٹ سلطان، پہاڑ پور، حفص آباد سے ہوتے ہوئے ہم انشاءاللہ ڈیرہ غازی خان 11:30 بجے احتجاج میں پہنچیں گے۔ احتجاج پہنچے مطلب سب کسانوں کے مسائل جڑے ہیں انہوں پیپلز پارٹی اجاگر کرنی پی ہے، کیا سمجھتے ہیں جو بڑے مسائل کیا ہیں کاشت کرنا دے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو اساں بلاول بھٹو زرداری صاحب دے آکھن دے تے اج 24 کو ڈیرہ غازی خان واسطے لیا چ روانہ تھیندے پئے۔ باقی جڑے کساناں دا بحران یا پاکستان دے وچ جڑی معیشت تباہ تھیندی پئی ہے، اون دے احتجاج دی خاطر اساں اج ڈیرہ غازی خان اکٹھے تھیندے پئے۔ اچھا بالکل جی، کاشتکاروں کے مسائل اور کاشتکاروں حقوق کے لیے یہاں سے لوگ روانہ ہو رہے ہیں۔ شاہ صاحب آپ کیا کہیں گے سر؟ اساں چیئرمین بلاول بھٹو دے حکم دوتے ویندے پے ہیں، کسان پاکستان دی معیشت دا 70% ان پہ اساں یہ چاہتے کہ اگر چیزاں انہاں دے کنٹرول وچ کہنی کم از کم یہ کنٹرول چ کہ ساکو گندم دوتے کم از کم سبسڈی دے کے کم از کم ساکو سندھ دے برابر تا گندم دا ریٹ دیتا ونجے 2200 روپے من ساکو کم از کم دیتا ونجے، تاکہ کسان جڑے ان ٹائم بلیک دوتے کھاد گدی بیچ گدا ہے، ڈیزل گدا ہے اتنا مہنگا، کم از کم کچھ نہ کچھ ان دی بھرپائی تھی سنگے۔ بالکل مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ حکومت جو ہے کسانوں کے حقوق کے لیے اپنے تمام جو وعدے پورے کرے، ورنہ پیپلز پارٹی جو ہے کسانوں کے ساتھ کھڑی ہے، ان کے ہر وقت ڈویژنل جنرل قیادت میں قافلہ روانہ ہے۔ بہت شکریہ زاہد، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ ڈیرہ غازی خان کی صورتحال سے متعلق آپ کو بتائیں گے کہ اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے زیر اہتمام پل ڈاٹ پر احتجاجی مظاہرہ جاری ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ سردار دوست محمد کھوسہ رکن قومی اسمبلی نواب زادہ افتخار مظاہرے کی قیادت کر رہے ہیں۔ مزید بات کریں گے، رضا ملک نے ہمیں وہاں سے جوائن کیا۔ رضا ملک بتائے گا کتنی بڑی تعداد میں کسان موجود ہیں، قیادت میں کون کون شریک ہے؟ بالکل ملک بھر کی طرح یہاں بھی ڈیرہ غازی خان میں بھی جو ہے کسانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے زیر انتظام جو ہے
वो किसान ट्रैक्टर ट्राली मार्च किया जा रहा है। रैलियां जो है यहाँ पुल डाउट पे पहुंची हैं, किसानों की बहुत बड़ी तादाद है और यहाँ एहतजाज का जो सिलसिला जारी है। सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा साबिक वज़ीर आला पंजाब जो है वो यहाँ क़यादत कर रहे हैं इस एहतजाज की और सैकड़ों की तादाद में जो है यहाँ मुजाहिरीन पहुंचे हुए हैं। ट्रैक्टर ट्राली लगाकर जो पुल डॉट है उसको अतराफ में बंद कर दिया गया है, ट्रैफिक हर तरफ से ब्लॉक है और किसानों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ मौजूद है। ट्रैक्टर ट्राली पर स्टेज बनाकर जो है वो तकरीर का भी सिलसिला जारी है। हमारे साथ मौजूद है सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा साहब। किसानों के हवाले से आज जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एहतजाज करने जा रही है, मुल्कगीर एहतजाज है, किस तरीके से सारी सूरत हाल को देख रहे हैं और जो एहतजाज है इसके मकासद क्या, रिलीफ जो है वो मिल पाएगा किसान को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मौका दिया अपने चैनल पे मुझे बात करने का। देखिए जी, सबसे पहली बात जो है वो तो ये है कि इस हुकूमत ने जो तबाहकारियाँ की हुई हैं हर शोबे में, उसकी मिसाल आपके सामने है। कानून नाम की कोई चीज़ इस मुल्क में नहीं है, गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ इस मुल्क में नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज़ इस मुल्क में नहीं है, गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ इस मुल्क में नज़र नहीं आती। जिस शोबे को, जिस तबके को पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी का दर्जा दिया जाता है, किसान को और काश्तकारी को, ज़राअत को, जितनी बुरी तरह इन्होंने काश्तकार को और ज़राअत को कुचलने की कोशिश की है, हम उसके खिलाफ आज सड़कों पे निकले हैं। अपने किसान भाइयों की, अपने काश्तकार भाइयों की आवाज़ बनने के लिए निकले हैं और हुकूमत को बावर कराने के लिए निकले हैं कि अगर उन्होंने जो उनका फ़र्ज़ है, जो काम उनके फ़राइज़ में शामिल है, अगर उन्होंने वो न किए तो हम हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं अपने काश्तकार भाइयों के लिए। ये ज़मीन का सीना चीर के अनाज उगाते हैं और उस अनाज से हम अपने घरों का चूल्हा जलाते हैं और अपने बच्चों की किफ़ालत करते हैं। आज 9600 रुपए की इस सीज़न में 9600 से 10,000 रुपए की DAP लोग खरीदने पे मजबूर हुए। आज 1670 रुपए की यूरिया जो है वो 2500, 2600, 2700, 2800 पे काश्तकार लेने के लिए तैयार है, वो भी एक एक दो बोरी, सारा दिन लाइनों में जलील होके, और उनको एक एक दो बोरी अगर वो भी मिल जाए तो स्टॉकिस्ट इन्हीं के हुकूमत की बगल में बैठे हुए हैं, जिन्होंने इस जिले में भी और पूरे पाकिस्तान में अपने गोदामों में खादों को स्टॉक किया हुआ है और अपनी मनमानी कर रहे हैं। मनमानी से वो लोगों को अपने रेट्स पे खादें जो हैं वो बेच रहे हैं। यानी जब बीज का मौसम आया, बीज 2 नंबर और नापायद। जब DAP का मौसम आया तो DAP 10,000 रुपए पे। जब यूरिया का और पेस्टिसाइड का मौसम आया, अडल्टरेटेड पेस्टिसाइड और यूरिया की सूरत हाल ये कि 1700 की यूरिया जो है वो 25-25, 2600 रुपए पे काश्तकार लेने के लिए मजबूर है। क्या करे? अगर एहतजाज नहीं करेगा तो क्या करेगा? जी, एहतजाज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? किसानों का जो ये एहतजाज है पुलडाट पे जारी है। नवाबजादा इफ्तिखार की क़यादत में भी मुजफ्फरगढ़ से एक बड़ी रैली जो है वो इस एहतजाज में शिरकत के लिए पहुंची थी। नवाब साहब, जो है सरापा एहतजाज है, काश्तकार भी और यूरिया का बहरान है, बीज का बहरान है, खाद का बहरान है, तो किस तरीके से किसानों के ये मसाइल हैं, किस तरीके से हल हो पाएंगे? देखें, आज पूरे पाकिस्तान में कराची से खैबर तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसानों के साथ मिलकर ट्रैक्टर ट्राली मार्च कर रही है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी लीड कर रहे हैं हैदराबाद से, और तमाम डिवीजनल हेड क्वार्टर्स पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, MNAs और सेनेटर्स जो हैं वो इसे लीड कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। हम ये जो किसानों के साथ ज़्यादती की जा रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसानों का माशी कत्लेआम नहीं होने देगी, और हम आटा, चीनी और गंदम के बहरान की तरह इस बहरान को दबने नहीं देंगे। आज 24 को, ये 21 से हमारा शुरू हुआ था मार्च, आज पूरे मुल्क में फैल चुका है और पूरे मुल्क में हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर हुकूमत ने इसके जो माफिया है इसे बेनकाब न किया, इसके खिलाफ इंक्वायरी कमेटी न बनाई, तो 27 फरवरी को पूरे पाकिस्तान में हम कॉल देंगे और कराची से, मिज़ार कायद से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। और ये किसान दुश्मन हुकूमत जो है, जब तक ये
इससे हम गिरा नहीं देते। हमारा ये मिशन जारी रहेगा। जी, मिशन ये जारी रहेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हैं, खुद किसान भी हैं, काश्तकार हैं। किस तरीके से जो मसाइल का सामना पड़ रहा है, किसानों की कितनी बड़ी तादाद जो है यहाँ पहुंची? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो नवाब से बस बहुत बड़ा काफिला घेनते आए हैं और ट्रैक्टर मार दी निगरानी भी खुद की थी और नवाब से ट्रैक्टर चलाते घेना है। बाकी रह गया खाद की पोजीशन 1700 वाली खाद 3000 की नहीं मिलती पी, यूरिया खाद DAP खाद 4500 वाली सगू 9000 से 10000 की मिलती रह गई है। हुण अगो गवारा खाद जी 1500 रेट है वो 2500 की मिलती पई है। ये माफिया जड़ा है तुम आप देखो जैसे कितना कितना माफिया ने जट को खत्म कर दिते। ना खाद मिलती पई ना उनकी पैदावार आ सकती गंदम की और इंशाल्लाह इन दफा जो हालात हैं और ये बोरान तीजे नंबर से जी स्मगलिंग थी पी खाद की गंदम की अट्टे की ये रोकी वजे। अगर ये सारी बहर चली गई तो इतना कुछ नहीं मिलनी खुराक। नवाब साहब जो है अब एहतजाज जो है आज भी जो है जारी रहेगा और उसके बाद अब 27 फरवरी को जो है वो बड़ी कॉल दी जा रही है। तो 27 फरवरी तक का क्या लाइम होगा? इस दौरान हमारे मुख्तलिफ एहतजाज होंगे। आपने देखा कि इससे पहले हमने असम्बली के बाहर जब इन्होंने मिनी बजट पास कराया तो चेयरमैन साहब की क़यादत में पीपल्स पार्टी ने असम्बली के अंदर भी और असम्बली के बाहर भी भरपूर प्रोटेस्ट किया और कॉल दी थी। और उसके बाद ये हमारा दूसरा प्रोटेस्ट है। इसके साथ 27 तक जो है हमारे मजीद भी महंगाई के खिलाफ, बिजली का रेट जो बढ़ाए जा रहे हैं उसके खिलाफ हमारे प्रोटेस्ट होंगे। तो इंशाल्लाह ये हमारा सिलसिला जारी रहेगा। जी बिल्कुल, एहतजाज का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। महंगाई के खिलाफ भी एहतजाज जो है वो किया जाता रहेगा। बिजली के जो रेट्स बढ़े हैं उस पर भी एहतजाज होगा। पेट्रोल महंगा हुआ, घी महंगा हुआ, दालें महंगी हुई। महंगाई के खिलाफ भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एहतजाज जो है वो जारी रहेगा। आज किसान मार्च हो रहा है। किसानों से इज़हार यकजहती के लिए पुलडाट पर जो एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। इस दौरान अतराफ में हर तरफ से जो है वो ट्रैफिक ब्लॉक करके जो किसानों से इज़हार यकजहती के लिए पाकिस्तान पीपल्स सड़कों पर है। बहुत शुक्रिया रज़ा मलिक हमें अपडेट कर रहे थे। फिर अभी आपको बताएं मौजूदा हुकूमत की नाकिस पॉलिसी और चिश्तिया इंतजामिया की मिली भगत के साथ चिश्तिया में खाद की ब्लैक में फरोख्त जारी है। किसानों का ऐसी दफ्तर चिश्तिया के सामने एहतजाज और नारेबाजी। मजीद बात करेंगे जाहिद हुसैन से। जाहिद बताएगा मुजाहिरीन क्या कहते हैं अब? हाँ जी बिल्कुल, खाद के असूल के लिए परेशान आज सरापा एहतजाज हैं असिस्टेंट कमिश्नर चिश्तिया ऑफिस के बाहर। इनका क्या मुतालबा है, इनको किस कदर परेशानी है, खाद की ना मिलने की वजह से इनकी फसल किस कदर नुकसान में जा रही है। मेरे साथ यहाँ पर किसान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं और वो आज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के बाहर क्यों सरापा एहतजाज है वो हमें बताएंगे। बाबा जी तुसी खाद लैन आए हो जी, तुहानू खाद मिलती है नहीं मिलती? सानू जी 10 दिन हो गए जी, सानू खाद नहीं मिली। धक्के खा खा के उन्होंने मुलाजम सानू धक्के देंदे ने, असीं बाहर निकल जाने हैं। शाम तक बह के जलील हो के ख्वार हो ते असीं जलील। वड्डे जिमीदार जेडे ट्रक्कां दे ट्रक निकल जांदे ने, रक्शियां दे रक्शे निकल जांदे ने, पर्ची ते जांदे पैन, सारा कुछ हो रहा है जी सानू गरीब। बाबा जी ये पर्चियां कित्थों मिलदियां ने? अल्लाह जाने जी कित्थों, अंदरों ही मिलदियां ने, अंदर ही ले जांदे। एसी का लीडर जाता जा दुकान बह जाता 50-50 बोरी की पर्ची काटते होगा ब्लैक करा देता 2500 नु। अच्छा तुसी की कह रहे थे बाबा जी? बोलो तो क्या आखिर जी ये वो किसान जो एसी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के बाहर सरापा एहतजाज, इनका कहना है कि मुतलका इंतजामिया। शुक्रिया। अहमदपुर शर्किया में किसानों का खाद के दम दस्तयाबी पर शदीद एहतजाज सामने आया है। किसानों ने एहतजाज करते हुए कचहरी रोड ब्लॉक कर दी है। एहतजाज के बाद ट्रैफिक के रवाने भी खासी मुतासिर रही है। अपडेट करें आपको अहमदपुर शर्किया से, जहाँ पर किसानों का खाद की अदम दस्तयाबी पर शदीद एहतजाजी मुजाहरा जारी है। किसानों ने एहतजाजन रोड को भी ब्लॉक कर दिया है जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी खासी मुतासिर हुई है। और दूसरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसान मार्च के लिए डिविजनल सदर मीर आसिफ दस्ती की ज़ेर क़यादत काफिला डीजी खान के लिए रवाना हो चुका है। मजीद बात करेंगे तैमूर अथर से। तैमूर बताएगा काफिला कहां तक पहुंचा अभी? पाकिस्तान पीपल पार्टी का किसान मार्च जारी है और इसी हवाले से कोटदू से भी जो काफिला है वो डीजी खान के लिए रवाना हो रहा है। डिविजनल सदर मीर आसिफ खान दस्ती की ज़ेर क़यादत यहाँ से कारों का जो काफिला है वो इस वक्त तैयार हो चुका और यहाँ से रवाना हो रहा है। हमारे साथ मौजूद है मीर आसिफ खान दस्ती, इनसे जानते हैं। आप मुझे बताइएगा किसान मार्च कर रही है पाकिस्तान पीपल पार्टी और डीजी खान के लिए आपका काफिला जो है वो तैयार हो चुका है, किस तरह जाएंगे और रास्ते में भी जो आपके साथ जो है काफिले वो मिलेंगे, कब तक वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ पर क्या प्रोग्राम है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम किसानों के लिए निकल रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किसानों के लिए यकजहती के लिए ये आज प्रोग्राम बनाया। डिवीजनल हेडक्वार्टर पर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है
जो कि इस नालायक और नाअहल हुकूमत के खिलाफ इंशाअल्लाह रेफरेंडम साबित होगा। हमारे डिवीजन के हर तहसील से अल्हम्दुलिल्लाह काफिले निकल रहे हैं, जैसा कि राजनपुर, जामपुर, डेरा गाजी खान, तौसा, लिया, मुजफ्फरगढ़, अलीपुर, जतोई और कोटदू से भी अल्हम्दुलिल्लाह काफिले निकल रहे हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क में, महंगाई है, बदअमनी है, आखिरी शोबा रह गया था किसानों का, जो कि हमारे मुल्क में रीढ़ की हड्डी की तरह है। 70% हमारी आबादी ज़राअत के साथ मुंसलिक है, लेकिन इस जालिम हुक्मरानों ने किसानों और काश्तकारों को भी नहीं छोड़ा। आज जो खाद के रेट्स हैं ब्लैक में मिल रही है, ब्लैक में भी नहीं मिल रही। 10,000 रुपये में DAP चली गई थी, 3,000 रुपये में यूरिया खाद चली गई है। लोग परेशान हैं और मुल्क में ग़िज़ाई किल्लत का आगे खतरा है। गंदम का जो बम्पर क्रॉप होता था पहले हमारे मुल्क में, वो अब नहीं होगा। अब हमारे मुल्क में ग़िज़ाई किल्लत का खतरा है, गंदम की किल्लत का खतरा है। कब तक पहुंचेंगे? जी हम इंशाल्लाह 12:30-1 बजे तक वहाँ पर पहुँच जाएंगे। इंशाल्लाह पुल डाट के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर मुजाहरा करने जा रही है और इंशाल्लाह ये तारीख का सबसे बड़ा मुजाहरा होगा। बिल्कुल डीजी खान में विक्टोरिया अस्पताल बहावलपुर में शुगर के मरीजों के लिए इंसुलिन की किल्लत पैदा हो चुकी है। मरीजों और उनके लवाहिकीन का कहना है कि कई रोज से अस्पताल इंसुलिन लेने आ रहे हैं जो कि नहीं मिल रही। मजीद बात करेंगे महमूद जहीर से। महमूद, क्या सूरत हाल है जरा? विक्टोरिया अस्पताल के आउटडोर में, जहां पर लोग इंसुलिन लेने के लिए आते हैं लेकिन इंसुलिन नहीं मिल पाती है। क्या मामला है जी, आप आइएगा जरा बताइएगा। इंसुलिन कल भी चक्कर लगाया जी, कहते हैं जी कल आए, तो आज भी वही सूरत हाल है। वहां पहुंचे हैं, वो कहते हैं 7 वाले रूम से पता करें। 7 वाला रूम अभी तक ये लॉक है और अंदर नॉक किया तो अंदर से कोई खोल ही नहीं रहा। अब परेशान है, तंगी है जारी बात है जी। आप भी इंसुलिन ले रहे? जी मैं जुमेरात को आया था इधर पहले, तो मैं हफ्ते को आना, आप हफ्ते को अब आया तो अभी छुट्टी है। क्या कितने रोज से आ रहे हैं? मैं सर 1 हफ्ते से आ रहा हूँ, मुझे इंसुलिन नहीं मिल रही। वालदा की तबीयत बड़ी ख़राब है, बड़ी सिसनाक है, लेकिन उनको इंसुलिन नहीं मिल रही। 3 दिन से आ रहा हूँ और लेकिन इंसुलिन खत्म हो गई। जब इंसुलिन खत्म हो गया, आप भी इंसुलिन लेने? हाँ जी, इंसुलिन लेना है। क्या वजह, मिल नहीं रही दरवाजे के ऊपर? वो कह रहे खत्म है, फिर आना। आए कहाँ से आए आप? जजमान से। जजमान से? हाँ। ओके, अभी आप सुन रहे थे जी इंसुलिन के बहुत हवाले शुक्रिया से। महमूद, आपने से अपडेट किया। लिया से आपको खबर दें, रूरल हेल्थ सेंटर 110 TDA का एक्सरे यूनिट 4 माह से गैर फॉल है। BHU से RHC अपग्रेड होने पर अस्पताल में एक्सरे यूनिट कायम किया गया। नवंबर से एक्सरे मशीन इंस्टॉल होने के बावजूद इसको फॉल ना किया जा सका। एक्सरे यूनिट फॉल ना होने से मरीज दूर दराज का सफर करने पर मजबूर हैं। अस्पताल में 25 kV का ट्रांसफार्मर लगाया गया है, SMU का ऐसा बताना है। अब कुछ बात करेंगे गैस बहरान के हवाले से। तो मुल्तान में गैस बहरान जारी है। चूल्हे ठंडे पड़ने पर आवाम परेशान है। बस्ती चाह यूसुफ वाला में 2 माह से सुई गैस गायब है। इलाका मकीन गैस की अदम दस्तियाबी पर फट पड़े। कहा कि लकड़ियां जला जला कर आंखों के मरीज बन चुके हैं। मजीद बात करेंगे इब्राहिम खान से। इब्राहिम, बताएगा क्या कहते हैं इलाका मकीन? इब्राहिम से रब्ता करेंगे। इब्राहिम, अगर सुन पा रहे हैं तो बताएगा क्या कहते हैं इलाका मकीन? बिल्कुल, सर्दी का मौसम है और इस मौसम में मुल्तान शहर के जो वासी हैं इनको शुरू से ही एक अहम मसला जो है वो दरपेश रहा है और वो ये रहा है कि मौसम में जो है गैस की किल्लत, गैस की लोड शेडिंग होना। घरों में गैस के बिल जो है वो तो भेज दिए जाते हैं लेकिन गैस जो है वो नहीं भेजी जाती। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बस्ती चाह यूसुफ वाला में। यहाँ के जो इलाका मकीन है, रिहायशी हैं, इनको भी इसी मसले का सामना है। सारे जो है आप लोग अगर अपने बिल दिखा सकें तो ये सब यही कहते हैं कि यहाँ पर बिल जो है आ जाता है लेकिन गैस जो है नहीं आती है। बात करते हैं हम इनसे। भाईजान बताइएगा, शुरू से ही गैस नहीं आ रही? ये 2 महीने से बिल्कुल जो है गैस बिल्कुल नहीं आ रही है और सुबह के टाइम में हुकूमत ने वादा किया कि 3 टाइम गैस देंगे, लेकिन 3 टाइम में क्या 1 टाइम में भी नहीं आ रही। सुबह बच्चों के लिए नाश्ते के लिए बहुत परेशानी होती है, दोपहर में खाने के लिए बाजार से ला के बहुत तंग हो गए हैं। भाईजान आप बताइएगा, महीने का जो है LPG पर कितना आपका जो है लग जाता है खर्चा? LPG पे तकरीबन 1000 रुपया हमारा खर्चा लग जाता है और ये एक मस्जिद का बिल है, उसमें गैस बिल्कुल नहीं आ रही। नमाजी जो हैं वो सुबह के टाइम आते हैं जनाब, आगे गैस नहीं होती, ठंड में नमाज पढ़ के चले जाते हैं घर।
ठंडा पानी होता है, वज़ू के लिए भी मसला है। तो अभी गैस तकरीबन 2-3 महीने हो गए हैं कि गैस बिल्कुल ही नहीं आ रही, न घरों में आ रही है। लकड़ियाँ लेके हम गुजारा करते हैं, एलपीजी वो लेके गुजारा कर रहे हैं। तकरीबन ये गैस का बड़ा मसला है। 3 टाइम गैस देने का वादा किया गया था, लेकिन एक टाइम भी जो गैस है वो नहीं दी जा रही है। मजीद ये मुतालबा किया जा रहा है कि बिल तो परेशान दिखाई देते हैं। बहुत शुक्रिया इब्राहिम, आपने अपडेट किया। शहरी ओलिया में गैस का बहरान, बस्ती चाह यूसुफ वाला इलाका में गैस गायब है, शहरी फट पड़े हैं। क्या कहते हैं ये आपको सुनाते हैं। से गैस बिल्कुल नहीं आ रही है, और ख़ास तौर पे जब बच्चे सुबह के लिए स्कूल के लिए निकलते हैं उसलिए मसाइल होते हैं, फिर दोपहर का खाना, फिर शाम के लिए। तो एलपीजी जिनका बड़ा घराना है, ख़ास तौर पे हमारा बड़ा घराना है, तो हमें हर हफ्ते तकरीबन 1200-1300 हर हफ्ते, यानी कि 4-5 हज़ार आराम से एलपीजी ख़रीदना पड़ती है, और लकड़ी अलग। हमारा भाई डेली का 1.5 किलो लग जाता है। क्या करें, हम मजबूरी के तहत अब गुजारा कर रहे हैं। 2 महीने हो गए। अवाम की दुहाई आपने जानिए, बात करेंगे बढ़ती महंगाई के हवाले से। और एफसी के स्पेशल इम्तहानात को चुठा की आयशा सदीक़ा ने 1100 में से 1096 नंबर्स हासिल किए हैं। होनहार तालिबा का डॉक्टर बनकर मुल्क कौम की खिदमत का आज़म। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे राना मोहम्मद सलीम से। सलीम बताइएगा। माना हमदानी के एक निजी स्कूल में मौजूद हूँ, जहाँ की तालिबा आयशा सदीक़ा ने एफएससी के स्पेशल एग्जाम्स में 1100 में से 1096 नंबर हासिल किए, नुमाया पोजीशन हासिल की है। हमारे साथ मौजूद हैं आयशा, ये बताइएगा 1096 नंबर आपने स्पेशल एग्जाम्स में हासिल किए, कैसा महसूस कर रही हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आज जिस मकाम पर मैं पहुँची हूँ वो सब अल्लाह पाक का करम है। उसके बाद मेरे वालिदैन की दुआएं हैं, मेरे असातिज़ा कराम की दुआएं हैं, उनके बाद उनकी मेहनत है। अल्हम्दुलिल्लाह एफएससी में मैंने 1100 में से 1096 नंबर हासिल किए हैं, और मैंने एमडी कैट का टेस्ट भी दिया था, उसमें मैंने 210 में से 173 नंबर हासिल किए, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी कंफर्म हो चुका है। तो ये सब मेरे असातिज़ा कराम की दुआएं, उनकी मेहनत और मेरी अपनी मेहनत भी शामिल है। तो ये इलाका पसमानदा ज़रूर है, लेकिन यहाँ टैलेंट की वाकई कोई कमी नहीं है। बच्चे भी टैलेंटेड हैं और असातिज़ा कराम भी बहुत ज़्यादा मेहनत से पढ़ाते हैं। इस इदारे में मैंने मैट्रिक भी यहीं से की थी, और मैंने एफएससी भी इसी इदारे में की है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि लोग कहते हैं कि यहाँ ना पढ़ें, यहाँ के बच्चे, यहाँ के टीचर्स, तो ऐसी कोई बात नहीं होती। सिर्फ पढ़ाने वाले पे और पढ़ने वाले पे डिपेंड करता है। यहाँ के टीचर्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे और बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, और उन्होंने मेरी एंट्री टेस्ट में भी बहुत हेल्प की। स्पेशली मेरे टीचर्स जिन्होंने एफएससी में मुझे पढ़ाया, सर नईम अख्तर साहब और सर शाहिद साहब, उन्होंने मेरी एमडी कैट में भी बहुत हेल्प की और एफएससी में भी बहुत हेल्प की। तो मैं उनकी मशकूर हूँ, और प्रिंसिपल बिलाल अहमद साहब से भी मेरी यही गुजारिश है कि वो उन टीचर्स को मोटिवेट करें और एमडी कैट की तैयारी का सेटअप इधर ही से स्टार्ट करवा दें, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि आगे जाएं, बहुत पैसा खर्च होता है उनका। यहाँ इतना पैसा नहीं खर्च होगा, लेकिन तालीम यहाँ। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सलीम, आपने अपडेट किया। मियांवाली में नेशनल पार्टी का तंजीम साजी शुरू करने का फैसला। तंजीम साजी और अवामी राबता मुहिम बारे लाहे अमल तैयार कर लिया गया है। मियांवाली नेशनल पार्टी के सेनेटर मोहम्मद ताहिर वजिंजो और सेनेटर मोहम्मद अकरम दश्ती का दौरा। मियांवाली नेशनल पार्टी पंजाब के सदर मोहम्मद अयूब मलिक भी हमरा थे। पीपला बार के साबिक सदर की रिहाइशगाह पर अवामी इज्तिमा किया गया। अहदेदारों ने पार्टी की जदोजहद और मंशूर से मुतालिक तफसीली गुफ्तगू की। अहदेदारान ने अवाम को नेशनल पार्टी में शमूलियत की दावत दी है। अब बुलेटिन के इख्तिताम में आपको बताएं, पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने का मिशन हेल्थ टीमें मैदान में आ गई हैं। मुल्तान में 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आज से आगाज कर दिया गया है। पोलियो के 2 कतरे पिलाएं, बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाएं। पोलियो वायरस के खात्मे के लिए महकमा सेहत की जानिब से आज से 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। मुहिम की कामयाबी के लिए जिले इंतजामिया की जानिब से सख्त इकदाम करने का फैसला किया गया है। इस हवाले से CEO हेल्थ डॉक्टर शोएबुर रहमान गुरमानी की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इंसदाद पोलियो टीमों को चेक किया गया। CEO हेल्थ डॉक्टर शोएबुर रहमान गुरमानी का कहना था कि वालिदैन पोलियो टीमों के साथ ताउन करें। उनका मजीद कहना था कि पोलियो कतरे पिलाने से इनकार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सुबह सवेरे टीम जो है 7 बजे जो है वो डिस्पैच हो गई थी। तो इस सिलसिले में टीमें जो है घर घर जाकर जो है बच्चों को 5 साल तक के जो बच्चे हैं उनको पोलियो के ड्रॉप्स पिला रही है। और इसके अलावा उनके ऊपर UCMO हैं और एरियन चार्जेस हैं, वो भी उनको चेक कर रहे हैं। मैं भी इसी सिलसिले में जो है फील्ड में निकला हूँ ताकि घर घर जाकर दस्तक दी जाए।